नमस्कार। बाल विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि हर बच्चे को परिवार का सुख मिले। एवरी चाइल्ड हैज़ अ लविंग फैमिली। और इस दिशा में महत्वपूर्ण विषय है चाइल्ड अडॉप्शन। नवंबर का महीना अडॉप्शन अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए इस विशेष कार्यक्रम एक नया आसमां में चर्चा करते हैं कि चाइल्ड अडॉप्शन का सुखद एहसास क्या है, और अगर कोई बच्चा गोद लेना हो तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया क्या रहती है। और क्योंकि इस कार्यक्रम के केंद्र में बच्चे हैं, तो सबसे पहले उन्हीं की बात सुनते हैं। अडॉप्शन को लेकर उनका अनुभव कैसा रहा। Hi, my name is Akash. I was adopted when I was 5 months old. I'm grateful to my birth family who safely surrendered me in an adoption agency. In my home, we talk openly about adoption, which has created a very positive and safe environment for me. I feel very special that I was adopted because I have 2 days to celebrate my birthday and my homecoming day. We are a hybrid family, but no one shows any difference between me and my sister. My teachers and friends, all of them know I'm adopted, but show no difference. My adoption journey has been very fruitful and beautiful, and I believe that every child deserves a family. Hi, I'm Shivani Ajit Nayak and I'm from Bangalore. I'm currently pursuing my undergraduate degree in business administration, and I'm here to tell you about my adoption experience. I was brought home when I was 6 months old, and ever since then, there has been no turning back. I still remember as a kid when me and my grandpa used to go to the railway station as a stroll. And there, the uncles and aunties used to call me the cutest names ever. Well, as a kid, don't all of us love being appreciated? In 2005, we adopted a baby brother, and that made my family complete. We've celebrated all our festivals together and always enjoyed each and every part of life. Hi, I'm Astha from Gurgaon. I'm my mom's hard-born daughter. मेरा मानना है कि मैं यूनिक हूँ, डिफरेंट नहीं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस टॉपिक पर खुल के बोलने का कॉन्फिडेंस दिया, and I'm proud of myself and my parents. I want the society to think that adoption is not an adjustment, it's acceptance. Lots of children do not get safely and legally surrendered in specialized adoption agencies. Instead, they are abandoned in unsafe places. Through the campaign Safe Surrender, I have got to know that the Indian law states a guardian or parent, if they are unable to or unwilling to raise the child, they can safely and legally surrender the child in a specialized adoption agency. There are a lot of parents waiting to adopt, and there are a lot of children who need a family. It is necessary to make sure every child reaches a family just like I did. I had to change one thing about the society in perception to adoption. That would be, do not choose adoption as a last resort. Have an open mind. Think it as an alternative of expanding your family. प्यार बांटने से प्यार बढ़ता है. There are a lot of children who need the nurture and care of parents, and that can only be provided to them when parents adopt children and give them all the love they need. वाओ, बच्चों के विचार सुनकर वाकई ही बहुत आनंद आया। और चाइल्ड अडॉप्शन पर बातचीत के लिए यहाँ दिल्ली दूरदर्शन स्टूडियोज़ में मेरे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। आइए उनका परिचय आपसे कराऊं। स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर संघमित्रा बारिक का। नमस्कार। आप केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निप्सिड इंस्टीट्यूट से हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर वंदना कुमार। नमस्कार। पेरेंट इन अडॉप्शन, प्राउड मदर ऑफ सहज एंड सोहम, और साथ ही आप जॉइंट सेक्रेटरी हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। हमारे साथ हैं वंदना नांगिया जी। नमस्कार। आप बाल विकास के क्षेत्र में लगभग 2 दशकों से जुड़ी हैं, एजुकेटर हैं, काउंसलर हैं। आपसे ज़रूर आज टिप्स लेंगे कि आखिरकार जब चाइल्ड अडॉप्शन की बात होती है तो किन बातों का ध्यान रखें, बच्चे हों या परिवार या समाज। लेकिन डॉक्टर संघमित्रा, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि भारतीय समाज के संदर्भ में अगर बात करें तो चाइल्ड अडॉप्शन को लेकर कितनी प्रगति हुई है?
सर काफ़ी प्रगति हुई है एडॉप्शन को लेकर, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ पेरेंट्स आर कमिंग फॉरवर्ड, दे हैव रजिस्टर्ड थ्रू ऑनलाइन, मीन्स थ्रू केयरिंग पोर्टल्स टू टेक द चाइल्ड इन एडॉप्शन। काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं और लोगों का माइंडसेट चेंज हो रही है। पहले तो गर्ल चाइल्ड को कोई एडॉप्शन में नहीं ले रहे थे, ग्रेजुअली वो लोग गर्ल चाइल्ड को भी एडॉप्शन में लेना चाहते हैं। और बाकी ट्रेनिंग्स काफ़ी हो रही है, अवेयरनेस काफ़ी हो रही है। हमारा मंत्रालय जो है कि नोडल मिनिस्ट्री जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं कि इस एडॉप्शन प्रोग्राम्स का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और थ्रू कारा, थ्रू सारा एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल में DCPU और सा है जो स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी है, उसका थ्रू में काफ़ी अवेयरनेस किया जा रहा है। तो पेरेंट्स आर ग्रेजुअली कमिंग फॉरवर्ड टू टेक द चाइल्ड इन एडॉप्शन। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि कारा यानी सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी में काफ़ी संख्या में पेरेंट्स रजिस्टर कर रहे हैं, तो काफ़ी प्रगति हुई है डॉक्टर कुमार। बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, बहुत मैसिव एटीट्यूडनल शिफ्ट है एक्चुअली। अच्छा, अगर आप देखें तो अब लोग ये नहीं समझते कि ये अडॉप्शन जो है वो केवल निसंतान दंपतियों के लिए है। लोग इससे अब फैमिलीज़ को एक्सपैंड भी कर रहे हैं, और अब चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच के थ्रू लोग सोच भी रहे हैं कि ये बच्चे के नज़रिए से देख रहे हैं कि बच्चे को एक घर चाहिए, एक सेफ, सिक्योर और लविंग एनवायरनमेंट चाहिए। वो सबसे बड़ा शिफ्ट है। और आप देखिए कि बच्चों ने कितनी खूबसूरती से बात की है और वो तभी पॉसिबल है जब उनके माँ बाप, उनका परिवार सब इस बात को लेकर के कॉन्फिडेंट हो। तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। बिल्कुल, और हमने वहाँ आकाश को सुना, इंटरेस्टिंगली उन्होंने कहा कि मैं अब साल में 2 दिन सेलिब्रेट करता हूँ, बर्थडे और होम कमिंग डे। तो आपने जब तकरीबन 20 साल पहले चाइल्ड अडॉप्शन का निर्णय लिया, आपकी यादें क्या हैं बच्चों की होम कमिंग को लेकर? बहुत ही सुंदर यादें हैं, बहुत सारी यादें हैं एक्चुअली। और मुझे अभी भी याद है जब पहला दिन था सोहम के साथ, तो मैंने अलार्म लगा करके मैं सोई कि कहीं ये ना हो कि वो रात को जागे और वो मैं सोती रह जाऊं और वो उसको भूख लगे। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे बताया गया था कि वो 2 घंटे में फीड लेता है। वो लगभग 3 महीने का था उस समय, और 2 घंटे होते उससे पहले मैं जाग गई थी, और वो हल्की सी उसने चूं की और मैं जाग गई। तो वो, और फ्रॉम देन ऑन ही बिकेम माय टीचर। और ये बात भले तकरीबन 18-19 साल पुरानी है, आपको ऐसे लगता है कल ही की बात है? बिल्कुल कल की बात है। वो बिल्कुल कल की बात है। लेकिन जब बच्चा घर आता है, होम कमिंग डे की हम बात करते हैं, परिवार काफ़ी एक्साइटेड लाजमी है। तो एज अ काउंसलर आप क्या टिप्स देंगी कि परिवार किन बातों का ध्यान रखे? जितना खुशी आप ये देखिए एक बच्चे के पैदा होने पे होती है, उतनी ही खुशी बच्चे को गोद लेने पे होती है ना जी। बात सोचने वाली बात यह है कि बच्चा घर आया है, तो वो खुशी दुगनी हो जाती है ना। और जरूरत ये समझने की बात है कि किस उम्र का बच्चा आपने गोद लिया है। छोटा बच्चा है, जैसे वंदना जी ने कहा कि 3 महीने का बच्चा है, या थोड़ा सा और बड़ा बच्चा है जो लोगों से इंटरैक्ट कर सकता है, या और भी बड़ा बच्चा है जो एडोलेसेंट एज का है। तो हर एक उम्र के साथ जो होता है थोड़ी सी नीड्स बदल जाती हैं, पर जो बेसिक बात जो होती है वो ये कि जो माँ बाप, आप देखिए फैमिली स्टैंड्स फॉर फादर, मदर, आई लव यू। और वो फादर और मदर का दर्जा आप देखिए वो बच्चा दे रहा है जी। वो जो प्रिविलेज मिल रहा है आपको, उस बच्चा आपको वो दे रहा है। तो जरूरी ये है कि सबसे पहले माँ बाप का और उस इमीडिएट फैमिली, उस बच्चे के साथ उनका बॉन्ड पहले होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिफोर हम आगे रिलेटिव्स को, फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ। तो उस दिन जिस दिन होम कमिंग डे है, हम अवॉइड करें सारे रिलेटिव्स को ना बुलाने। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करिए कि ना बुलाएं सारे। आप पहले इस बच्चे के साथ, जिसको कहते हैं आप बच्चा आपके साथ एडजस्ट हो पहली बार। बच्चा एक नए एनवायरनमेंट से एक दूसरे एनवायरनमेंट में आ रहा है, उसके लिए वो नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट और अडेप्ट करने में उसको मुश्किल लगे। आप एडल्ट हैं तो वो बच्चा है, उसको टाइम लगेगा। तो उसको ध्यान रखते हुए उस हिसाब से फिर आप अपने आप को एक्सपैंड करें और जिनको बताना। बिल्कुल, जो बच्चा घर आ रहा है डॉक्टर संघमित्रा, वो 2 महीने, 4 महीने, साल, 3 साल, 5 साल का भी हो सकता है। बच्चा परिवार में आ रहा है, वो अपने आप में गिफ्ट है। और आप अगर कोई गिफ्ट देना चाहें फेस्टिव सीजन, तो आप ये खूबसूरत कोस्टर्स भी दे सकते हैं जिनमें तस्वीरें भी हैं और शानदार मैसेजेस भी, जैसे कि ये नो चाइल्ड इज टू ओल्ड टू अडॉप्ट। तो ये भी समझना जरूरी है। यस, उसके ऊपर हम बोल सकते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है, जो हमारा इंडियन पेरेंट्स होते हैं वो थोड़ा सिलेक्टिव है। 0 to 4 years चिल्ड्रन को जो सिलेक्ट करना चाहते हैं कि एडॉप्शन में लें,
और जो ओल्डर चिल्ड्रन होते हैं तो उनको एडॉप्शन में नहीं लेना चाहते हैं बिकॉज उनको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होता है, बाद में फिर वो एडॉप्शन डिसरप्शन हो जाता है। तो ये कारण से वो ओल्डर चिल्ड्रन को लेना नहीं चाहते हैं। और कुछ मैं बताना चाहूँगी अमित जी, जो स्पेशल नीड चिल्ड्रन है तो मोस्टली दे आर गोइंग फॉर इंटर कंट्री एडॉप्शन, जो हमारे इंडियन पेरेंट्स नहीं लेना चाहते हैं गोद। तो ये अभी भी देयर ए लॉन्ग वे टू गो, वी हैव टू गो ए लॉन्ग वे because many things we have to do, you know, which have not been done. बिल्कुल, तो जहाँ प्रगति हुई है वहाँ पर निरंतर चर्चा जरूरी है ताकि इसको हम और बढ़ा सके। तो भले कोस्टर हमें सजग कर रहा है नो चाइल्ड इज टू ओल्ड टू अडॉप्ट, लेकिन आप ये मानेंगी डॉक्टर कुमार की ज़मीनी हकीकत में 0 to 2 years की कैटेगरी में ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, तो हम मानसिकता में बदलाव कैसे लाएं? आप ठीक कह रहे हैं अमित जी। लगभग 30,000 प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स जो हैं आज वेट कर रहे हैं बच्चे के लिए केयरिंग सिस्टम में, और 2,500 के आसपास बच्चे हैं जो हैं लीगली अवेलेबल फॉर अडॉप्शन, और इसमें 200 से कम बच्चे हैं जो 2 साल की उम्र से कम हैं। जहाँ और दूसरी तरफ ये सिचुएशन है कि 80% जो पेरेंट्स हैं वो 2 साल से कम का बच्चा चाहते हैं। तो इसके लिए तो जो एटीट्यूडनल शिफ्ट जो फर्दर चाहिए, जिसकी संगमित्रा जी ने भी बात की, उसके लिए सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस। ये कॉन्वर्सेशंस जो आप कर रहे हैं वो सबसे बड़ा कदम है। हम इसके बारे में बात कर सकें, हम मिथ्स को बस्ट कर सकें कि बड़ा बच्चा हमारे साथ बॉन्ड नहीं करता है, तो हमें इन मिथ्स को बस्ट करना है। कुछ हमें फैमिलीज़ को सपोर्ट भी देने की आवश्यकता होगी, कुछ काउंसलिंग की आवश्यकता होगी ताकि वो अडॉप्शंस जो हैं सक्सेसफुल हो सके। आपने काउंसलिंग कहा, मुझे वंदना नांगिया जी की और याद आ गई। तो थोड़े मिथ्स बस्ट करते हैं। एक तो हमने कहा नो चाइल्ड इज टू ओल्ड टू अडॉप्ट, दूसरा हम सुनते हैं अडॉप्शन इज नॉट प्लान बी। तो और कौन से ऐसी भ्रांतियां हैं गत समय में थी लेकिन 21वीं सदी में खासतौर पे युवा अब इस बात को समझ रहे हैं कि ये भ्रांति है, इसे तोड़ना होगा? अक्सर आप ये देखिए, मैं स्कूलों की बात कर सकती हूँ आपको, और स्कूलों में ये कहना कि आप एक अडॉप्टी हैं, एक समय पर बहुत बड़ा लेबल माना जाता था, आप देखिए, परंतु ये चेंज मुझे अब स्कूलों में नज़र आ रहा है। दूसरा, जो बच्चे फैमिलीज़ में अडॉप्ट होते हैं उनकी कम्युनिकेशन और उनकी एडजस्टमेंट विद फैमिलीज़ पहले से और बेहतर हो गई है। पेरेंट्स ज़्यादा ओपन हो गए हैं, कम्युनिकेशन बेटर हो गई है, रीचिंग आउट एबिलिटी बेटर हो गई है, कोपिंग स्किल्स बेहतर हो गई हैं। जो एक समय पर, मैं आपको बताऊं, 10 साल पहले की बात, जब आप एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, एज अ स्टूडेंट, आप ये वाले कॉन्वर्जेशंस करना ही नहीं चाहते थे। तो मान लीजिए वंदना जी, कोई टीचर इस समय कार्यक्रम देख रही है और फर्स्ट क्लास में, सेकेंड क्लास में, 5th क्लास में उसका स्टूडेंट टीचर को बताता है कि आई एम अ चाइल्ड इन अडॉप्शन, तो 10 साल पहले और अब टीचर कैसे रिस्पॉन्ड करे और टीचर उसे कैसे हैंडल करना चाहिए? राइट, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताती हूँ। मेरे एक्सपीरियंस में एक छोटा बच्चा जिसने इंट्रोड्यूस अपने आप को करा स्कूल में, और उठते ही बोला कि आई एम अडॉप्टेड, और टीचर का पहला जो रिस्पॉन्स था वो था ओह। अब आप देखिए, कहने को ये खाली ओह था, बट वो ओह उस बच्चे के लिए एक आइडेंटिटी क्राइसिस डेवलप कर सकता है कि मैं यहाँ फिट इन होता हूँ इस जगह पर नहीं, कि क्या अडॉप्टेड होना सही है कि गलत है। मैं ये नहीं कहती कि अब अभी वो सब कुछ एकदम ही खत्म हो गया है। मैं ये कहूँगी कि लेट्स गिव देम द ग्रेस कि वो एजुकेट हो रही है आजकल की सोसाइटी अडॉप्शन को लेकर, पर अभी कई चीजें हैं जो हमको, कई चीजों पे जिस पर हमको अभी भी ध्यान रखना होगा। Oh, which could be interpreted as stigma should be replaced by what? Right, it could be really interesting. Okay. या आप ये कहिए oh right. So basically instead of giving with the oh जो होता है वो एक judgmental statement है, which is either a surprise or somewhere judgmental in terms of oh that's not normal. You are different, yes, right? और जहाँ आप कहते हैं okay, the expression आप देखिए okay, which says okay, it's supposed to be something very interesting, something different, right? And that different can be celebrated. Yes. वो difference जो है वो diverse है, और उस difference को celebrate करना, जो ये change जो आपने मुझसे पूछा कि क्या change, myth बदल रहे हो, क्या change हो रहा है,
मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंसेस की सेलिब्रेशन, यूनिकनेस की एक्सेप्टेंस थोड़ी सी बेहतर हो गई है, थोड़ा इंक्लूसिव हो गई है। You've given us an idea of next tagline on a coaster. Difference need to be appreciated. Right. लेकिन काउंसलिंग के साथ साथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। Yes, और अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें तो उसके अंतर्गत जो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उसमें आप डेप्यूटी डायरेक्टर हैं। जब जिला स्तर पर आप ट्रेनिंग कंडक्ट करती हैं, वहाँ किस तरह के मुद्दे सामने आते हैं? जब जिला स्तर में हमारे एक्चुअली हम लोग सभी को बुलाते हैं, जैसे ट्रेनिंग खाली हम कभी वेबिनार करते हैं, कभी सेमिनार करते हैं, कभी वर्कशॉप करते हैं, कभी सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करते हैं, कभी अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। जब जिला स्तर में होता है, हमारा जिला स्तर में भी कुछ मैकेनिज्म्स है जो एडॉप्शन को, जैसे हमारा एक DCPU है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, जिसमें हमारा प्रोटेक्शन ऑफिसर नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर ऑलरेडी अपॉइंटेड है, जिनको भी उन्होंने नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर को प्रमोट कर रहे हैं। तो उसमें उन लोग का भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है अवेयरनेस क्रिएट करना डिस्ट्रिक्ट लेवल में। तो हम लोग जब करते हैं, हम कुछ इश्यूज ऐसे आते हैं कि कुछ पेरेंट्स है, दे नीड टू बी मोटिवेटेड, सम पेरेंट्स आर कमिंग फॉरवर्ड टू टेक द चाइल्ड इन एडॉप्शन, लेकिन फिर ट्राई भी करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई भी करते हैं, फिर उसके बाद डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि एडॉप्शन करें कि ना करें। तो वहाँ कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनको काउंसलिंग का, प्रोफेशनल काउंसलर का ज़रूरत है, जो काउंसलिंग प्रोसेस का थ्रू में ये प्रॉब्लम को हम एड्रेस कर सकते हैं, ये इशूज को। तो संगीता जी, जैसे भारत में 730 जिले हैं, अगर हाँ। इस समय किसी भी जिले में दूरदर्शन का एक कार्यक्रम देख रहे हैं और वो चाहते हैं निप्सेड की ट्रेनिंग वहाँ हो, तो वो कैसे संपर्क करें? क्योंकि निप्सेड तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आ रहा है, तो क्या हर एक जिले में भी उपस्थिति है? फिर हर एक जिला वाइज हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कभी क्या करते हैं, पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए करते हैं। लेकिन हमारा जो रीजनल सेंटर्स है, रीजनल सेंटर हर रीजन में एक एक रीजनल सेंटर है, तो उनके अंडर में जो स्टेट्स आते हैं, तो वो लोग फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक दे आर ट्राइंग टू रीच आउट टू डिस्ट्रिक्ट लेवल। लेकिन शायद इसमें एक बदलाव 21वीं सदी में तेजी से देखा जा रहा है, जो डॉक्टर संगमित्रा ने बताया कि सेमिनार के साथ साथ वेबिनार, और वेबिनार का इतना दौर चल गया है डॉक्टर कुमार, तो मेरे जहन में सवाल उठता है कि अगर हम भारत में देखें तो मिलियंस ऑफ वल्नरेबल चिल्ड्रन की बात होती है, कि जिस संख्या लाखों में है, करोड़ों में है, और हम चाहते हैं कि वो जो बच्चे हैं चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में, उनकी लिंकेज स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी के साथ स्ट्रेंथन हो। तो क्या टेक्नोलॉजी का हम सहारा ले सकते हैं कि हम बच्चों को आइडेंटिफाई करें कि हाँ इतने बच्चे CCI में, और कैसे उसे अडॉप्शन पूल में लाएं? बिल्कुल, मेरे ख्याल में जो मंत्रालय है एट द फेडरल लेवल और स्टेट लेवल, ये सारी स्टेप्स ऑलरेडी चल रहे हैं, इन सब पर काम हो रहा है। और जैसे आपने कहा, लगभग हमारे पास 10,000 इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनमें लगभग 4 लाख बच्चे हैं जी। और इनमें से जो कुछ हैं चुनिंदा ही स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसीज़ हैं। तो भारत सरकार ने ऑलरेडी एक मैकेनिज्म निकाला है, जैसे ट्रैक चाइल्ड है। अच्छा। तो एक डेटाबेसिस के थ्रू काम चल रहा है। सिमिलर एफर्ट्स जो हैं, जो बच्चों के लिए न केवल उनको रजिस्टर्ड CCIs में रखना है, पर वो उनकी लिंकेजेस कैसे स्थापित की जाएं सास के साथ, उस पे ऑलरेडी काम हो रहा है। आप जानते होंगे केयरिंग्स ऑलरेडी एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम है जिसके थ्रू अडॉप्शन होती है। तो और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस हो रही है, और पर्टिकुलरली हमने कोविड-19 के ज़माने में देखा है किस तरीके से डिजिटाइजेशन में प्रोग्रेस हुई है, इट हैज़ एब्सोल्युटली लीपफ्रॉग्ड। तो सेम तरीके की पॉसिबिलिटीज़ इस क्षेत्र में भी हैं। डेटा एनालिटिक्स की का बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्कोप है करने का, सारे प्रोसेसेस को डिजिटाइज करने की ज़रूरत है, और शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस काम के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, बच्चों को ट्रैक करने के लिए, और पेरेंट्स की एक्सेस के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल। तो जो लोग स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और सोशल एंटरप्राइज करना चाहते हैं, तो शायद आप बच्चों के विकास के क्षेत्र में भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। बतौर काउंसलर आपको क्या लगता है, मान लीजिए मुझे कोई मेंटल हेल्थ चैलेंज है, या डिप्रेशन, या मैं दुविधा में हूँ, या जैसा संगमित्रा जी कह रही थी, मैं मान लीजिए बच्चा गोद लेना चाहता हूँ लेकिन तय नहीं कर पा रहा हूँ, 1-on-1 सामने बैठ के काउंसलिंग बेहतर है या डिजिटली भी उतना ही प्रभाव पड़ता है? देखिए, आमने सामने डिजिटल जब आप बात करते हैं, और अभी आप देखिए कोविड के दौरान क्या हो रहा है, जहां आप केस इंटरेक्शन करते हैं, उसके अंदर आप ऑडियो कॉल भी करते हैं,
और प्रेफर करते हैं कि वीडियो कॉल हो, क्योंकि आप चेहरा देख सकते हैं जिससे आप बात करें, है ना। तो अब उसके ऊपर अगर आप आमने सामने बैठ के बात करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। उसका कारण ये है, मैं बताऊं आपको, कि जब मैं आपको देख रही हूँ और सामने बैठी हूँ, आपके हाव भाव, आपका बॉडी लैंग्वेज, उनसे, जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, मेरा हाव भाव, मैं क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही हूँ, मेरा जो मैं कह रही हूँ उसमें कितनी सच्चाई है, मैं कितनी पैशन के साथ वो बात आपको कन्वे कर रही हूँ, वो एज अ काउंसलर आप पेरेंट को या क्लाइंट को या बच्चे को जो कम्युनिकेट करते हैं वो कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू डिजिटल। वो जो स्क्रीन है ना, वो बीच में आ जाता है। बिल्कुल सही। लेकिन कोविड के ज़माने में कहीं ना कहीं डिजिटल पुश मिला है, तो शायद हमें अब हाइब्रिड वैरायटी ढूंढनी होगी। तो डॉक्टर वंदना कुमार, जो पेरेंट्स डिसाइड करना चाहते हैं कि हाँ हम बच्चा गोद देना चाहते हैं, थोड़ा उनके लिए बताइए प्रक्रिया है क्या? पहले थोड़ी लॉ की बात करें। हाँ जी। 2 लॉज हैं जो अडॉप्शन को गवर्न करती हैं। एक तो है हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, 1956 का एक्ट है, जो कि पर्सनल लॉ माना जाता है। अच्छा। इसमें एक हिंदू फैमिली एक दूसरे हिंदू फैमिली या हिंदू पेरेंट्स को एक हिंदू बच्चा गोद में दे सकता है। अच्छा। और गोद ले सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक इनफॉर्मल सी प्रक्रिया है, 2 परिवारों के बीच में है। इसमें किसी भी ड्यू डिलिजेंस की आवश्यकता नहीं है, किसी अडॉप्शन डीड की आवश्यकता नहीं है, किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एक लॉ, एक बहुत ही एक्सपेंसिव लॉ भारत सरकार लेकर के आई 2000 में, जो कि जिसको कहते हैं जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट, 2000 में आया, जो कि सभी परिवारों को, न केवल हिंदुओं को पर सबके लिए ये लागू होता है। और ये लेकर के आए, और जो केयरिंग्स जिसकी हम बात करते हैं, जो भी कारा के थ्रू अडॉप्शंस होते हैं, वो जेजे एक्ट के थ्रू ही होते हैं। तो कारा जो संस्था है उसकी स्थापना भी फिर जेजे एक्ट के अंतर ही हुई? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो संगीता जी, क्या कारा फिर भारत में इस समय एकमात्र कानूनी संस्था है जिसके तहत आप बच्चा गोद ले सकते हैं? नो, कारा का रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ इंटर कंट्री अडॉप्शन। कारा प्रमोट करता है, फैसिलिटेट करता है, मॉनिटर करता है इन कंट्री अडॉप्शन को। अच्छा। और रेगुलेट करता है इंटर कंट्री अडॉप्शन को एज ए सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर द हेग कन्वेंशन ऑफ इंटर कंट्री अडॉप्शन। कारा एक स्टेचुटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो विच इज फंक्शनिंग एट द सेंट्रल लेवल, नेशनल लेवल। और हमारा स्टेट लेवल में अंडर चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज स्कीम एक है, जिसके एक्सक्लूसिवली चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज स्कीम के अंतर्गत हमारा जो हर डिस्ट्रिक्ट में एक और एक से ज़्यादा साख का सेटअप करने का प्रावधान है। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास मोर देन 400 स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसीज है इंडिया में। हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। कोई डिस्ट्रिक्ट से, कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो जहां अभी तक सेटअप नहीं हुई है, कोई इशू नहीं। हम बोलते हैं कि उनको नियर बाई सहायता थ्रू में एडॉप्शन प्रोसेस को करवाने के लिए। एक स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी में कौन होता है? हर स्टेट में अमित जी, हमारा एक स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी है। अच्छा। कारा इज द अथॉरिटी, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। लेकिन हर स्टेट में एक स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी है जो कि मॉनिटर करता है, जो रेगुलेट करता, मॉनिटर करता है और फैसिलिटेट करता है एडॉप्शन प्रोसेस को। आपने स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में है, उसमें हमारा सोशल वर्कर है, साह का एक कोऑर्डिनेटर है। अच्छा। जो सोशल वर्कर हमारा होम स्टडी रिपोर्ट बनाते हैं। अच्छा। जो चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट बनाते हैं, जो इंडिविजुअल केयर प्लान बनाते हैं, जो मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट करवाते हैं, और उन्होंने काउंसलिंग भी देते हैं। जो पेरेंट्स, बायोलॉजिकल पेरेंट्स है, बच्चे को सरेंडर करने के लिए आए हैं। अच्छा। उनको वो काउंसलिंग सेशन करवाते हैं। और कोर्ट प्रोसेस में भी, जब कोर्ट में जाता है एडॉप्शन चीज़ें, तो वो उसमें भी एक पार्टी है का। जी। बच्चा जब गोद लेना है, शायद ये एक इमोशनल प्रोसेस है, लेकिन प्रक्रिया कानूनी ही जेजे एक्ट के तहत करें तो बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस अमित जी, जो ड्यू डिलिजेंस जेजे एक्ट के अंतर्गत हमारे को अवेलेबल है, उससे ये पक्की तरीके से निर्धारित कर सकते हैं कि जो बच्चा जिसको आप गोद ले रहे हैं वो सेफली सरेंडर किया गया है, रिलिंक्विश किया गया है, और इसमें कोई ट्रैफिकिंग नहीं है उससे। और आप डिटर्मिन कर सकते हैं बच्चे की हेल्थ कैसी है, उसकी बैकग्राउंड भी आपको अवेलेबल है। जो पेरेंट
है प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट, उसके बारे में भी हम पूरी बैकग्राउंड लेते हैं, जानकारी लेते हैं। और आपने थोड़ी देर पहले स्टेप्स की बात की थी, तो मैं कहूँगी 6 चरण हैं। अच्छा। जिसके तहत ये सारा प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। पहला तो वो कि आप केयरिंग्स में रजिस्टर करते हैं। जब हम केयरिंग्स कहें तो सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम, इसको हम केयरिंग्स कहते हैं। तो इसमें पहले रजिस्टर किया जाता है, उसके बाद होम स्टडी का प्रोसेस होता है जिसमें एक सोशल वर्कर घर आकर के होम स्टडी करते हैं। उसके बाद आपको रेफरल्स मिलते हैं। 3 रेफरल्स आपको मिल सकते हैं 60 दिन के अंतराल पर। मान लीजिए आपके पास पहला रेफरेंस आया एक बच्चे का, आपने हो सकता है उसको एक्सेप्ट कर लिया और हो सकता है नहीं किया, तो अगला रेफरल आपको 60 दिन के बाद मिलेगा। तो 3 रेफरल्स आपको मिल सकते हैं। रेफरल के बाद बच्चे को 48 घंटे के अंदर रिजर्व करना होता है पेरेंट को, और फिर 20 दिन के अंदर आपको उसे कंप्लीट करना होता है प्रोसेस को। उसके बाद एक फॉस्टर एग्रीमेंट बनता है और फाइनली कोर्ट में अडॉप्शन डीड मिलती है उसके बाद। तो ये 6 स्टेप्स हैं यदि आप बच्चा गोद लेना चाहें। मैं रेफरल पर आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। मान लीजिए किसी प्रोस्पेक्टिव पेरेंट ने कारा में केयरिंग्स में एनरोल कराया और उसके बाद फिर होम स्टडी के बाद पहला रेफरल आ गया, तो जैसा अब कानून है कि 48 घंटे में आपको रिजर्व करना है, तो पेरेंट्स फिर से कभी कभी पशुपेश की स्थिति में आ जाते हैं कि क्या करूं या ना करूं, ऐसे में कैसे डिसीजन लें? अंडरस्टैंडिंग ऑफ अडॉप्शन मेरे लिए एक एक्रोनिम की तरह है। दैट एक्रोनिम बेसिकली स्टैंड्स फॉर एक्टिंग अपॉन द डिजायर टू प्रोटेक्ट एंड टेक केयर ऑफ इम्पोर्टेंट अदर विद नर्चरेंस, व्हिच इज अडॉप्शन। यस, ठीक है। तो आपको अपने बियॉन्ड, अपनी डिजायर के बियॉन्ड जाना है। जो प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स को जो समझना जरूरी है वो ये कि एक होता है डिजायर कि मुझे पेरेंट बनना है, सो आई नीड टू ब्रिंग अ चाइल्ड इन। चाइल्ड्स नॉट अ टॉय, वी नॉट टॉकिंग, वी टॉकिंग अबाउट अनदर ह्यूमन, वी टॉकिंग अबाउट अनदर सिग्निफिकेंट ह्यूमन, वी टॉकिंग अबाउट अनदर बंडल ऑफ जॉय। And do you think that the dilemma in decision making happens because I'm trying to match my expectation based upon age, like we discussed, or gender, and that's why this message reads, do not match a child except one. Correct, absolutely, because the decision to take the child on now has to be complete with the feeling of taking on in toto, पूरी तरीके से, क्योंकि जहां आप ये वैसिलेट कर रहे हैं वहां कहीं अभी आप प्रिपेयर्ड और तैयार नहीं है। इनफैक्ट वही आपके लिए एक पहला जिसको कहते हैं स्टेप हो जाता है ये डिसीजन लेने का कि अभी लेट मी वेट, क्योंकि जब बच्चा आ रहा है वो बंडल ऑफ जॉय आपके घर आ रहा है, आपको कंप्लीट आपकी फैमिली कंप्लीट करने, तब आपको पूरी तरीके से तैयार इन टोटो होना जरूरी है। Yes, absolutely. A bundle of joy is awaiting to come to your home. How ready is the family? चलिए बात करते हैं कि युवाओं की कि वो कितने तैयार हैं। इसको लेकर सर्वे भी आयोजित हुए हैं और आइए सुनते हैं अविनाश कुमार जी को, जो कि फाउंडर हैं फैमिलीज ऑफ जॉय फाउंडेशन के, और वो बता रहे हैं कि बदलते दौर में चाइल्ड अडॉप्शन को लेकर खासतौर पर युवा किस तरह से सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। फैमिलीज ऑफ जॉय फाउंडेशन में हमारा यही प्रयत्न रहता है कि हम किस तरह से अडॉप्शन की एक नई सोच बना सकें। अडॉप्शन की वह परिभाषा जो किसी अधेड़ उम्र के निसंतान दंपति की आवश्यकता ना बनकर एक बच्चे को समाज में कैसे उसका अधिकार, एक प्रेमपूर्ण परिवार का वातावरण मिल सके, उसकी ओर काम करती हो। तो जब हम अडॉप्शन को एक बच्चे के नज़रिए से देखना शुरू करते हैं तो हमें अपनी आवश्यकता चाहे वो रहती हो लेकिन वो काफ़ी पीछे रह जाती है और हमें बच्चे की आवश्यकता और बच्चे का पोटेंशियल ज़्यादा ज़रूरी दिखाई देने लगता है। इसमें बहुत ही अहम भूमिका रहती है बच्चे की और आज के युवा समाज की। आज का युवा समाज ज़रूरी नहीं अडॉप्शन को उसी नज़र से देखे जैसा कि कहानी, किस्सों में या फिल्मों में दिखाया जाता रहा है। युवा समाज बहुत ही परिपक्व होता है, वो देख पाता है कि एक बच्चे के लिए परिवार का होना कितना आवश्यक है। तो हमारे साथ फैमिलीज ऑफ जॉय में पिछले 4-5 सालों में हर साल कॉलेजेस के बहुत सारे यूथ काम करने के लिए जुड़ते रहे हैं, और जब वे जुड़ते हैं तो हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो वो बहुत ऐसे चुटकियों में कर जाते हैं। जैसे समझिए सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग हुई, आजकल हर कोई सोशल मीडिया पे है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है। तो जब हम उनको अपने साथ जोड़ते हैं तो वो अपने नेटवर्क्स के थ्रू बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर पाते हैं।
दूसरी ओर ऐसे यूथ भी हैं जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं किसी प्राइवेट कंपनी में या किसी सरकारी कंपनी में, और जो हमसे जुड़ते हैं तो वो हमारी मदद करते हैं अडॉप्शन के लिए अवेयरनेस फैलाने में। तो हम जगह जगह जाते हैं, कंपनीज़ में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ पर हम अडॉप्शन का अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं। तो यूथ उसमें हमारी बहुत बड़ी मदद करते हैं। और एक तरह से जिस तरह से यूथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो होता है रिसर्च करना, बच्चों के लिए बुक्स डिज़ाइन करना, सर्वेज़ करना, कैंपेन्स करना। और हमारे साथ जो यूथ पिछले कुछ सालों में जुड़े रहे हैं उन्होंने हमारे ऐसे बहुत सारे सपोर्ट प्रोवाइड किया है इस तरह के काम करने में, जिसमें कि अडॉप्शन के बारे में लोगों को ज़्यादा जागरूकता फैलती है, लोगों को अपना रोल समझ में आता है। और यूथ के बहुत ही एनर्जेटिक और वेल कनेक्टेड होने की वजह से जिस काम को अगर हम अपने ही बलबूते पे करना चाहें तो अगर वो 5-6 महीने लगते हैं, तो यूथ को एंगेज करने से वो समझिए आप कुछ हफ्ते का काम या एक 1.5 महीने में ही बहुत ऐसे पॉजिटिव रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। तो यदि हमें अडॉप्शन की एक पॉजिटिव इमेज बनानी है, उसको एक नेशन बिल्डिंग टूल के रूप में देखना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में, अपने पाठ्यक्रम में, सिलेबस में, इवेंट्स के द्वारा यूथ को अडॉप्शन से जोड़ें। और जो कल आने वाला कल है उसमें जो अडॉप्शन की परिभाषा हो वो इन यूथ के सेंटिमेंट्स द्वारा बनाई जाए, ना कि पुराने कहानी किस्से और फिल्मों में जिनमें टिपिकली बात होती है अपना खून की, वंश आगे चलाने की, बच्चा हमारे जैसा दिखे, या बच्चा तभी गोद लो जब बाकी सारे उपाय बंद हो जाए, या फिर बच्चा तो सिर्फ निसंतान दंपति की आवश्यकता पूरी करने के लिए गोद लिया जाता है। इन भ्रांतियों से आगे निकलने के लिए यूथ हमारा बहुत सहायक हो सकता है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अडॉप्शन से जुड़ पाएँ। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हर एक को एक बच्चा गोद ही लेना है, लेकिन हम एक सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते पॉजिटिव अडॉप्शन लैंग्वेज यूज़ करके, रिसर्च करके, सपोर्ट करके, लीगल अडॉप्शंस को एंडोर्स करके, कई ऐसे तरीके हैं जिससे हम अडॉप्शन के लिए एक नई परिभाषा बना सकते हैं, और इसमें यूथ हमारा बहुत ही सहायक हो सकता है। एक नया आसमां बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि चाइल्ड अडॉप्शन को लेकर डिस्क्लोजर, पॉजिटिव आइडेंटिटी, पॉजिटिव लैंग्वेज पर हम बल दें। आज इस विशेष कार्यक्रम में हम चाइल्ड अडॉप्शन पर चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर वंदना कुमार, अविनाश जी ने जिस तरह से वहाँ पर यूथ इंगेजमेंट की बात की, तो आप कैसे देखते हैं यूथ के रोल को, और कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिस पे रिसर्च कर सकता है आज का युवा? आपको एक सर्वे के बारे में पहले बताना चाहूँगी। एक अभी रिसेंटली सर्वे किया गया जिसमें लगभग 3500 लोगों का सैंपल था, और वो एक ऑनलाइन सर्वे था जी। और उसमें ये सामने आया कि परिवार, फिल्म्स एंड मीडिया सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है कि अडॉप्शन की क्या छवि है। तो बहुत ज़रूरी है कि पहले हम उन मिथ्स को करेक्ट कर लें जो बॉलीवुड ख़ास तौर पर फैलाता रहता है। तो किस तरीके से बॉन्ड करता है, किस तरीके से नहीं। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है इस सर्वे की कि 90 के दशक में करीब 50% लोग समझते थे कि शायद कि अडॉप्शन के कभी चॉइस के रूप में उसे कंसिडर नहीं किया गया था, और आज स्थिति ये है कि लोग कहते हैं कि 80% लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद उनका बच्चा अडॉप्शन कंसिडर करेगा, और वो खुद कहते हैं कि हम उन्हें 93% ये कहते हैं कि हम उस डिसीजन को सपोर्ट करेंगे। तो देखिए ये कितना बड़ा चेंज है। जी, बहुत बड़ा चेंज है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो यूथ का डेफिनेटली इसमें बहुत बड़ा रोल है। जो नौजवानों में जो ऊर्जा है वो अमेजिंग क्वालिटी की ऊर्जा है। तो चाहे उसको हम रिसर्च में यूज़ करें, सोशल मीडिया में प्रमोशन की तरह यूज़ करें, क्योंकि ये तो डिजिटल का ज़माना है, हमें उनको साथ में लेकर के चलें तो हम सारे बैरियर्स को क्रॉस कर सकते हैं, और जिस तरीके का हम एक नया माहौल बना सकते हैं अडॉप्शन की समझ के लिए और उसकी एक्सेप्टेंस के लिए, वो बहुत ही फॉर फ्यूचर बहुत ही नेशन बिल्डिंग के काम आएगा। तो वंदना जी, मान लीजिए 21वीं सदी में एक युवा कपल हैं और वो चाइल्ड अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन घर में माँ बाप, रिश्तेदार रेडी नहीं है जी। कैसे हैंडल करें सिचुएशन? माँ बाप का पेरेंट बनना वो उनका पर्सनल चॉइस होता है, आप देखिए। और पेरेंट का अगेन एक्रोनिम मुझे करना बहुत पसंद आता है क्योंकि मुझे लगता है शब्दों में बहुत डीप मीनिंग होती है।
पेरेंट का मतलब है पे रेंट, पेइंग रेंट थ्रू लव, टू बी एबल टू लिव इन द हार्ट एंड लाइफ ऑफ योर बंडल ऑफ जॉय। Brilliant. तो जब आप किसी चीज़ के बारे में इतने पैशनेट हैं, एंड व्हेन यू आर रेडी टू यूज पेशेंस, टू बी अटेंटिव, टू बी रिस्पॉन्सिबल, टू बी एनकरेजिंग, नर्चरेंस करने के लिए, टेक केयर करने के लिए जब आप तैयार हैं, और कोई भी फैमिली आप देखिए, अपने बच्चों को, मैं आप ग्रैंड पेरेंट्स की बात करिए या इन लॉज, पेरेंट्स ऑफ द प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, वो क्या चाहते हैं कि उनका बच्चों की जो फैमिली है वो कंप्लीट हो। Yes. तो जहाँ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स की एंथुजियाज्म और पैशन एंड डिसीजन अटल है, तो वो किसी को भी एनकरेज और उनको समझा सकते हैं। और सबसे मोटी बात जो है वो ये कि बॉन्ड कोई ज़रूरी नहीं है जेनेटिक कनेक्शन से ही बने जाता है, राइट? और फैमिली को इकट्ठा खड़ा करने के लिए एक ओपन कम्युनिकेशन और एक बॉन्ड की बहुत ज़रूरत है। और वो बॉन्ड आई थिंक हमने देखा है कि हमारे फ्रेंड्स के साथ, हमारे इन लॉज के साथ, हमारे टीचर्स के साथ, हमारे रिलेटिव्स के साथ, किसी के साथ भी वो बॉन्ड, वो प्यार का जो बॉन्ड होता है, वो जेनेटिक कनेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर ये बात समझाई जा सकती है फैमिली को, तो आई डोंट थिंक सो उनको किसी तरह का एतराज होना चाहिए। बिल्कुल सही। सो आई थिंक दैट्स अ मिथ व्हेन वी से फैमिली इज ऑल अबाउट जेनेटिक्स, इट्स अबाउट रिलेशनशिप्स। आपके भी एक्सपीरियंस में ऐसा हुआ है कि पहले शायद जो दादा दादी नाना नानी बनने वाले हैं रेजिस्टेंट थे, लेकिन बच्चा जब एक बार घर आ गया तो कुछ हफ्तों महीनों में स्थिति फिर पॉजिटिव हो गई? ऐसे सोसाइटी में ऐसे होता रहता है, बिकॉज ग्रेजुअली वो लोग आते हैं घर देखने के लिए, ये कौन आया है, किसको ले आया, कहाँ से ले आया। फिर ग्रेजुअली जब बच्चे के साथ मिलते हैं, बच्चा का स्माइल देखते हैं, बच्चा जब फिर बच्चा के साथ इंटरेक्शन होता है, तब जब रापो डेवलप होता है, तब एक लव क्रिएट होता है उनके लिए। सो और ये बाद में ये नहीं रहता है। बिल्कुल। तो ये इसका मतलब बॉन्डिंग समय के साथ बनती है, ऐसे अनुभव देखे होंगे आप? ये एडॉप्शन के लिए खाली नहीं है। अगर आप देखे होंगे बहुत पेरेंट्स कोई प्लेस में जब एक गर्ल चाइल्ड बर्न होती है तो उन लोगों को बहुत हेजिटेशन होता है। दे यूज्ड टू से सो मेनी थिंग्स अगेंस्ट यू नो द चाइल्ड कि ये गर्ल चाइल्ड है, इसको लेके हम क्या करें, ये तो बेटा नहीं हुआ, तो सो मेनी थिंग्स। फिर ग्रेजुअली जब वो बच्ची 1 ईयर की हो जाती है, पापा पापा या मामा मामा बुलाती है, तब उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड क्रिएट हो जाते हैं। उसके बाद वो इतना पेरेंट्स फील हैप्पी कि फिर ग्रेजुअली समय के साथ वो फिर एडजस्ट। और मैंने आपसे चाइल्ड अडॉप्शन की प्रगति पूछी थी कार्यक्रम की शुरुआत में। अगर मैं महिला सशक्तिकरण की प्रगति पूछूं तो उसका एक सूचक यह है कि आज कार्यक्रम में हमारे सारे पैनलिस्ट महिलाएं हैं और इस समय एक और महिला हमारे साथ जुड़ रही हैं। मीरा मारती जी को हम सुनेंगे, जो कि को फाउंडर हैं वेयर आर इंडियाज चिल्ड्रन की, और वो हमें सजग कर रही हैं सेफ सरेंडर कैंपेन के बारे में। मेरा नाम मीरा मारती है और मैं हैदराबाद में रहती हूँ। मैं एक अडॉप्टिव पेरेंट हूँ। मैं एक NGO वेयर आर इंडियाज चिल्ड्रन की को फाउंडर हूँ। मेरे साथी को फाउंडर स्मृति गुप्ता और प्रतिमा शर्मा पुणे के निवासी हैं। WAIC का मुख्य उद्देश्य है कि हम ये सुनिश्चित करें कि परित्यक्त और अनाथ बच्चे एक सकारात्मक परिणाम तक पहुँचे। इसके लिए हम टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, अनुसंधान और अभियान कर रहे हैं। ऐसा ही एक अभियान हमारा सेफ सरेंडर कैंपेन है। आए दिन हम समाचार में बच्चों को कूड़ेदानों में, सड़कों में या कभी कभी मार दिए जाने की खबरें सुनते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों करते हैं लोग? क्योंकि आम जनता में भारत की कानून की जानकारी कम है। भारत का जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ये कहता है कि अगर एक परिवार बच्चे को पालना नहीं चाहते या पालने की क्षमता नहीं रखते तो वो उस बच्चे को एक स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी में सुरक्षित समर्पण कर सकते हैं। स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी उनको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास ले जाएगी और सरेंडर डीड पे साइन करना पड़ेगा। उसके बाद 60 दिनों की मोहलत दी जाएगी इस परिवार को कि बच्चा वापस घर ले जा सके। जब बच्चे को सुरक्षित समर्पण किया जाता है
तो बच्चा लीगल अडॉप्शन प्रोसेस में आ जाता है और एक नए परिवार तक पहुंच जा सकता है। भारत में 350 से भी ज़्यादा अडॉप्शन एजेंसी हैं। आपके निकटतम अडॉप्शन एजेंसी जानने के लिए आप kara.nic.in पर जा सकते हैं। तो मीरा जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात वहाँ पर हमें बताई कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत ये बिल्कुल कानूनी है कि अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे का किसी भी कारणवश पालन पोषण नहीं कर सकता तो कानून आपको इस बात की इजाज़त देता है कि आप उस बच्चे को सेफली सरेंडर कर सकें। तो ये संपूर्ण सुरक्षा की जो बात है, समर्पण की जो बात है, इस पर किन बातों का ध्यान रखें हम डॉक्टर कुमार? कहाँ जाएं? स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी जाएं माँ बाप? जी बिल्कुल। सेफ सरेंडर जैसे मीरा जी ने कहा कि बहुत ज़रूरी है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लीगल अडॉप्शन पूल में आ सकते हैं। तो कुछ चाइल्ड लाइन करके एक हेल्पलाइन भी है जो 1098 जी जी तो उसके तहत भी कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है सा के द्वारा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी तक, जिससे कि बच्चे जो हैं लीगली अवेलेबल फॉर अडॉप्शन किए जा सकते हैं। जी, लेकिन वंदना नांगिया जी, अगर माँ बाप सेफ सरेंडर कानून के बारे में नहीं जानते और कई बार हम देखते हैं कि बच्चे को उन्होंने जैसे कूड़ेदान में या रेलवे स्टेशन पे रख दिया, कोई माँ बाप ऐसा कर सकता है? देखिए, माँ बाप कोई भी ये नहीं करना चाहता अगर सर्कमस्टेंशियली वो उसके हाथ ना बंधे हों। और जो माँ बाप उस बच्चे को इस दुनिया में लेके आ रहा है वो उसको इतना प्यार करता है और उसकी एक फ्यूचर प्लानिंग है कि कोई ना कोई उसको वहाँ से ले जाकर उसको अच्छा घर, अच्छा परिवार ज़रूर देगा। क्योंकि कोई भी माँ बाप, जब आप माँ बाप बनते हैं, बच्चे से अलग होना बहुत ही दुखदायक चीज़ है। लेकिन उस दुख को आप कम कर सकते हैं सेफली सरेंडर करके। बिल्कुल, सेफली सरेंडर करेंगे तो उससे ये है कि आपको पता है कि बच्चा आपका सेफली सही जगह पर जाएगा जहां पर वो लीगली अडॉप्ट भी हो जाएगा। आप ट्रेनिंग में इस बात पे तो जरूर देती होंगी बल सेफली सरेंडर पर। हम जब ट्रेनिंग देते हैं वो ट्रेनिंग हमारा डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फंक्शनरीज के लिए डिफरेंट होता है। जैसे हम स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी को हमने ट्रेनिंग दिया, काफ़ी ट्रेनिंग हम लोग करते रहते हैं, निपसिट बिंग नोडल एजेंसी। अभी मैं बता रही हूँ अप्रैल से लेकर नवंबर के अंदर हमने 79,000 स्टेक होल्डर्स को ट्रेनिंग दे चुके हैं ओवरऑल फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रिलेटेड इशूज़ में। और हमने मोर देन 625 प्रोग्राम्स किए हैं, ऑर्गेनाइज किए हैं। बट आप अगर ओवरऑल चाइल्ड प्रोटेक्शन का बात करते हैं, हमने मोर देन 105 प्रोग्राम्स वी हैव ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 9 months। और उसके बीच में जब आप स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी का बात करते हैं, हम उनको बोले हैं कि कैसे क्वालिटी केयर आप प्रोवाइड करोगे बच्चों को और कैसे बच्चों का चाइल्ड डेवलपमेंट होगा, कैसे एक्टिविटी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट है क्या कॉन्सेप्ट, उनको अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन एक्टिविटीज़ कैसे ऑर्गेनाइज करना है, प्री स्कूल एजुकेशन एक्टिविटीज़ कैसे ऑर्गेनाइज करना है। हमने ये भी बताया एडॉप्शन रेगुलेशन में जो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, जब रेस्पॉन्सिबिलिटीज प्रेस्क्राइब हुआ है या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर जो प्रोसेस का बात करते हैं इन एडॉप्शन, आप उसको कैसे करोगे, तो ये सारे के ऊपर हम स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी को ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा। और उसका अलावा हम बाकी चीज़ें भी बताते रहते हैं, जैसे करेक्टली डेटा को अपलोड करना, अच्छा। टाइमली करना, अच्छा। टाइमली होम स्टडी करना, जो टाइम लिमिट हमारा प्रेस्क्राइब हुई है स्टिपुलेटेड टाइम में ये होना चाहिए। एडॉप्शन रेगुलेशन में सारे चीज़ें सिंप्लीफाई हुई है, सारे टाइम लिमिट को प्रेस्क्राइब किया गया है, उसी के थ्रू में जाने से और एडॉप्शन ईजियर हो जाएगा, डिले नहीं होना चाहिए प्रोसेस में। और कभी कभी क्या होता है, जैसे डेटा अपलोड कर देते हैं लेकिन लेट से करते हैं और अपलोड करते हैं तो करेक्ट डाटा अपलोड नहीं करते हैं, तो उसके ऊपर हम सिखा रहे हैं कि कैसे आप करोगे और अवेयरनेस कैसे करोगे, काउंसलिंग कैसे करवाओगे। सिमिलरली जो सिमिलरली जो सारा होता है, जो स्टेट लेवल में हमारा स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी है, उनको भी हम बताते हैं कैसे मॉनिटर करोगे, कैसे डेटाबेस बनाओगे, कैसे कोऑर्डिनेट करोगे, कैसे एडॉप्शन प्रोग्राम को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करोगे स्टेट लेवल में। और हमारे जो DCPU है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड
प्रोटेक्शन यूनिट डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी, उसको हम डीसीपीयू को बता रहे हैं कि आप कैसे ऑर्फन, अबंडन्ड और सरेंडर बच्चों को आइडेंटिफाई करोगे और फैसिलिटेट कैसे करोगे एडॉप्शन प्रोसेस को, वो भी टाइमली करना है, वो कैसे करोगे। और सिमिलरली हमारा जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटी है, हम उनको बता रहे हैं कि आप जो डिक्लेयर करते हो लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन जो सर्टिफिकेट देते हैं तो उसको टाइमली करें, बिकॉज कोविड टाइम में हमारा थोड़ा सा प्रोसेस में लेट हो गया, बिकॉज CWC वाज नॉट सिटिंग, इनफैक्ट वर्चुअल सब चीज़ हो रहा था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वो लोग मॉनिटर भी कर रहे थे, लेकिन फिजिकल सिटिंग्स नहीं था और उसमें काफ़ी चीज़ें हमारा टाइमली नहीं हो पाया। बिल्कुल, और आपने सही कहा कि चाइल्ड अडॉप्शन के मुद्दे पर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनके ऊपर भी थोड़ी बातचीत करें। अगर हम डॉक्टर्स की बात करें, पेडिट्रिशियंस, उनसे आपकी क्या अपेक्षा है चाइल्ड अडॉप्शन को लेकर? अमित जी, जो बच्चे के साथ एंटीनेटल स्टेज में हो सकता है उसकी हम शायद हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि क्या हो सकता है, माँ की क्या मनस्थिति रही, उसका क्या न्यूट्रिशन स्टेटस था, तो और इन सब चीज़ों पे बच्चे की डेवलपमेंट पे बहुत असर पड़ता है। उदाहरण के तौर पे जब हमने अपनी बिटिया को गोद लिया था तो उसका बर्थ वेट केवल 1.5 किलो का था और हमें बताया गया था कि उसका 32 वीक्स का डेवलपमेंट है, तो वो शुरू से ही पता था कि शायद उसको कुछ डेवलपमेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं। तो बहुत सारे इश्यूज़ आ सकते हैं, डेवलपमेंट रिलेटेड चैलेंजेस आ सकते हैं, माइलस्टोन्स में हो सकता है धीरे से कुछ प्रगति में कुछ स्लोनेस हो, उसमें हो सकता है। तो एक तो पेरेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है कि हो सकता है, और इसलिए उनको ये प्रोफेशनल हेल्प की और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत रहती है। वहाँ डॉक्टर्स का रोल आता है, वहाँ एजुकेटर्स का बहुत रोल आता है, जो स्कूल में बच्चे को थोड़ी सी सपोर्ट कर सकें, थोड़ा सा हैंड होल्डिंग, थोड़ी सी इनकरेजमेंट, इन सब से बच्चे को बहुत ही ज़्यादा इनकरेजमेंट मिल सकता है, उनको मोटिवेशन मिल सकता है और बड़ी सपोर्ट मिल सकती है आगे ग्रोथ में। स्कूल में क्या करिकुलम का हिस्सा है चाइल्ड अडॉप्शन? इस वक्त नहीं है, पर अब जो चीज़ उठ रही है वो लाइफ स्किल ट्रेनिंग के पार्ट में एज अ पार्ट ऑफ द काउंसलिंग यूनिट फॉर अवेयरनेस अब धीरे धीरे वो आने लगा है, पर करिकुलम में अभी पूरी तरीके से अभी नहीं बैठे। केंद्रीय विद्यालय में संगठन में एक चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन का इश्यूज के ऊपर जो इन सर्विस ट्रेनिंग होती है टीचर्स के लिए, उसमें वो है। दे आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ अवेयरनेसेस ऑन चाइल्ड राइट्स इन स्कूल्स, बिकॉज हम भी केंद्रीय विद्यालय संगठन जब भी ऑर्गेनाइज करता है प्रोग्राम, वी आर ऑल्सो गोइंग एज रिसोर्स पर्सन। हाँ, तो हमने डॉक्टर्स, स्कूल की बात की, पुलिस के साथ भी आप काफ़ी काम करते हैं? काफ़ी काम हमने पुलिस के साथ किए हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन इश्यूज में। जहाँ तक एडॉप्शन की बात है, उसमें जो अबंडन्ड चिल्ड्रन होता है, जो अबंडन्ड चाइल्ड है, जिनका पेरेंट्स ने या लीगल गार्जियन ने विलफुली जो बच्चों को रेलिंक्विश किए हैं, तो उनके लिए पुलिस को एक नो क्लेमेंट या नॉन ट्रेसेबिलिटी ऑफ पेरेंट सर्टिफिकेट देना पड़ता है। अच्छा। तो लेकिन एडॉप्शन रेगुलेशन में ये कहा गया है, वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया गया है। अगर 4 इयर्स से लेस देन 4 इयर्स चाइल्ड है तो 2 मंथ्स के अंदर देना है, और मोर देन 4 इयर्स है तो 4 मंथ्स के अंदर देना है। अगर वो टाइम पीरियड के अंदर नहीं दे रहे हैं तो DCPU विल बी सेंडिंग ए रिमाइंडर। अगर उसका रेस्पॉन्स भी नहीं आता है देन दे कैन गो अहेड फॉर एडॉप्शन प्रोसेस। जी, आखिरी दौर में हमारे पास 3-4 मिनट शेष पड़े हैं। पुलिस का सर वन मोर थिंग आई जस्ट वुड लाइक टू से, इसमें कुछ पेनल्टी प्रोविजंस दिया गया है। अच्छा। अगर कोई भी इसको बच्चा को रिसीव करता, कोई अबंडन चाइल्ड को, अगर उन्होंने चाइल्ड लाइन को नहीं बताया, जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटी है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल में है, उनको नहीं उनका नॉलेज मिला है, या DCPU को इन्फॉर्म नहीं किए, तो तब फिर उनके ऊपर अपने आप रख लिए तो, या किसी को दे दिए हैं, हैंड ओवर कर दिए, तो उनके ऊपर फिर पेनल्टी इम्पोज होगा एज पर द प्रोसीजर ऑफ जुवेनाइल जस्टिस। जी बिल्कुल। और यदि आप ये तमाम प्रक्रिया या पेनल्टीज के प्रति सजग होना चाहें तो आप कारा की वेबसाइट पे तो जा ही सकते हैं, kara.nic.in। उनका एक टोल फ्री नंबर है, उस पर भी आप जानकारी ले सकते हैं, 1800-11-13-11 1800-11-13-11। तो चलते चलते विश लिस्ट, नया साल आ रहा है 2021 और हम चाहते हैं कि बाल विकास पर और बल मिले, तो विश लिस्ट में क्या है, क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए? पहले तो एक माँ के तौर पर कहूँगी, ये
अडॉप्शन से जो परिवार बनते हैं वो बिल्कुल सामान्य परिवार होते हैं, असीम स्नेह और प्रेम पर टिके होते हैं। तो इन्हें ना हीन भावना से देखें और ना चैरिटी की निगाह से देखें। तो इन्हें समझें, इन्हें इंक्लूड करें, इन्हें एक्सेप्ट करें। पहली मेरी विश लिस्ट तो ये है। और दूसरा ये है कि इसको बच्चे की नज़र से देखें। ये सिर्फ एक दंपत्ति की ज़रूरत के हिसाब से नहीं देखें, इसे देखें कि जो सबके हित में हो, जो बच्चे के हित में हो और जो राष्ट्र हित में हो, इस निगाह से अडॉप्शन को देखें। जी, और भी पूछूंगा मैं और विश लिस्ट में आप क्या सोचते हैं, लेकिन पहले विचार क्या है आपके? पहले विचार ये राष्ट्र निर्माण की बात हो रही है, और राष्ट्र निर्माण होगा अगर माइंडसेट इंक्लूसिव होगा। हम बात करते हैं इंक्लूजन इन सोसाइटी की, जो एक नाउन है बेसिकली, पर जब हम बात करते हैं इंक्लूसिव तो वो है वर्ब, एक्शन। और इंक्लूसिव का मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, हर किसी को इंक्लूड करना और एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना। मेरे हिसाब से वो इन जनरल बहुत ज़रूरी है कि वो एक सोसाइटी में आना चाहिए, और उसकी शुरुआत स्कूलों से होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज स्कूल एक माइक्रोकॉस्म है आपका, देखिए सोसाइटी का। सो मे बी द विश लिस्ट इज ब्रिंग इट इनटू करिकुलम फॉर्मली। ओके, विश लिस्ट क्या करना चाहिए नए साल में? जैसे I can say there is a need to create a lot of awarenesses, because we have to reach out to the school. अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा एडॉप्शन फ्यूचर में हो तो इस स्कूल तक हमको पहुंचना है, बिकॉज फ्यूचर जनरेशन तक हमको जाना चाहिए। निपसिट का काम बढ़ता नजर आ रहा है आपको 2021 में। कम्युनिटी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। खाली पेरेंट्स को अवेयर करने से नहीं होगा, एजुकेट करने से नहीं होगा, कम्युनिटी अवेयरनेस करना जरूरी है, बिकॉज कम्युनिटी शुड एक्सेप्ट दिस थिंग। अर्बन रूरल डिवाइड दिखता है आपको? ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या बच्चा गोद देने की बात होती है कानूनी तौर पे? सर, हमारा जो विलेज लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी, हर विलेज में एक विलेज लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी बना हुआ है। उनको हम बता रहे हैं अगर ऐसे कोई चाइल्डलेस कपल्स है, अगर ऐसे कोई है पेरेंट्स सरेंडर करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स, फिजिकल, इमोशनल और अदर फैक्टर्स आर देयर, तो वो आप ये चीज़ों को एडॉप्शन प्रोग्राम के साथ लिंक करवाइए, DCPU को इन्फॉर्म कीजिए, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को इन्फॉर्म कीजिए। तो हर विलेज में हमारा एक विलेज लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी बना हुआ है। तो कमेटी में वो आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, प्राइमरी स्कूल टीचर, ये लोग एक कमेटी है। आशा बहन भी इसमें सक्रिय भूमिका निभा रही है, बहुत बढ़िया। तो हम उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि ताकि तुम ऐसा अगर किसी को मिलता है ऐसा आइडेंटिफाई करो और उसको लिंक कराओ हमारा। जी बिल्कुल, देखिए बच्चे की सेहत की बात जब होती है, कोई भी बच्चा हो तो AAA आंगनबाड़ी वर्कर, आशा बहन और ANM दीदी, इनको तो हम सलाम करते ही हैं। JJ एक्ट में कानूनी तौर पे भी कोई बदलाव की मांग नए साल में आने वाले समय में, जिस पे संसद पे चर्चा हो, संशोधन की आवश्यकता है, निरंतर रहती है कानून में? हामा और JJ एक्ट में पैरिटी आ जाए तो उससे बेहतर मतलब कोई चीज हामा में नहीं। कम से कम कुछ ड्यू डिलीजेंस, कुछ तो एक चेक्स एंड बैलेंसेस आ जाए। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा चेक्स एंड बैलेंसेस ये है कि जो प्रोस्पेक्टिव पेरेंट है वो JJ एक्ट को चुनकर कानूनी प्रक्रिया को अपनाए। बिल्कुल, That'll be easy way. बिल्कुल। So as we conclude, let me see how good a student I have been to the counselor. Family is father and mother, I love you. Parent was pay rent for the bundle of joy. And I've forgotten the adoption one. Adoption is acting upon the desire to protect and take care of important other with nurturance. Wow. Let's hope that all these acronyms, जी संगमित्रा जी। Yeah. What to say, because बच्चों का जो बेस्ट इंटरेस्ट है, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड शुड बी फुलफिल्ड, राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन शुड बी फुलफिल्ड। ये चीज़ें हमको देखना चाहिए, और देयर शैल नॉट बी एनी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम जो होती है पेरेंट्स को ओल्डर चाइल्ड के साथ, ये नहीं होना चाहिए। तो जो बायोलॉजिकल चाइल्ड के अधिकार हैं और चाइल्ड इन अडॉप्शन के अधिकार में कोई फर्क है क्या? फर्क रहता है? फर्क कुछ भी नहीं है अंडर एज पर JJ एक्ट। नथिंग इज देयर, because a child becomes, after adoption the child becomes the lawful child of the adoptive parents with all the rights, privileges and responsibilities, duties which has been attached to the biological child. तो इसीलिए वो सारे चीज़ें बायोलॉजिकल चाइल्ड का जैसा है। अगर आप मुझे एक अपॉर्चुनिटी था, मैं एक स्टडी कंडक्ट कर रही थी नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर के ऊपर। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मेरा पोस्टिंग था इन आसाम, इन रीजनल सेंटर। तो उसके वन एज ए पार्ट ऑफ द स्टडी मुझे विजिट करना पड़ा सम ऑफ द एडॉप्टिव फैमिलीज, जस्ट टू हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑन दैट कि कैसे वो बच्चों को ये रख रहे हैं और बच्चों का देखभाल कैसे कर रहे हैं। तो ऐसा अपॉर्चुनिटी के हिसाब से मैंने गया और देखा, जैसे हम एंट्री करते हैं एक लविंग एनवायरनमेंट, एक नर्चरिंग फैमिली एनवायरनमेंट आई फाउंड,
और उसमें बच्चों एडॉप्टिव चाइल्ड के साथ बायोलॉजिकल चाइल्ड विथ पेरेंट्स एक फैमिली फोटोग्राफ हर जगह मीन्स ड्राइंग रूम में उसको डिस्प्ले करना, तो और बच्चों को इतना इमोशनल बॉन्ड, इतना अटैचमेंट, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाई कि कौन सा बायोलॉजिकल चाइल्ड है, कौन सा चाइल्ड एडॉप्टिव चाइल्ड है, ये मैंने देखा। तो मीन्स नॉट ओनली इन वन फैमिली, 2-3 families I visited. I think that perhaps would be the case with every family, the bonding when it's nurtured and when it gets developed. So let me conclude by saying that child adoption is a beautiful, transformative experience of life, and let us all become more aware on this issue coming new year 2021 and contribute to ensure that we can find a home for every child in need of care and protection. To discuss this topic today, Vandana Nangia ji, Dr. Sangmitra and Vandana Kumar ji, बहुत बहुत आभार आपका. Thank you very much. Thank you. Thanks.